Hello and welcome you all again in this another biology video. Today we are going to study the regulation of a respiration. Okay, so let's start. Yes. So respiration, the regulation of respiration takes place in two ways. One is the nervous and another is the chemical. Okay. So normally adult human being breathes 12 times per minute and newborn breathes 44 times per minute. Okay. Now this breathing mechanism or respiration is the involuntary activity, right? तो ये involuntary activity है and एक जो breathing cycle है it takes 5 seconds to complete, and out of this 5 seconds 2 seconds for inspiration and 3 seconds for expiration. Okay, now let us start with the nervous regulation. So, the steady rate of respiration is regulated by neurons located in the pons and medulla of central nervous system. So, in a nervous regulation, the two parts of our central nervous system, that is the pons and the medulla, pons varoli और उसको pons voroli भी कहते हैं and medulla. So these are the two centers of the central nervous system. These two centers has the respiratory centers, or they are called as the respiratory centers. Then these respiratory centers regulate the rate and the depth of breathing. Okay, now these respiratory centers overall they are divided into three groups. So this one of these three group is the inspiratory center, second is the inspiratory and expiratory center, and then pneumotoxic center. So let us see something more about these three centers. Okay, yes. So here these are the three centers. One is the inspiratory center, and yes, it is the, so first of all this is the dorsal group of neuron. Okay, and located in the medulla. You can see the location of this inspiratory center. So this is our brain, and in this brain you can see this this part is called as a pons. Okay, and below this pons this elongated stem is called as a medulla. Okay, now this inspiratory center is present in this medulla. Okay, and particularly the dorsal neurons of this medulla region, they form the inspiratory center. Now what is the function of this inspiratory center? Uska jo function hai, it regulates the normal breathing process. जो हमारी नॉर्मल हम सांस लेते हैं, जो नॉर्मल ब्रीदिंग है उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है? ये इंस्पायरेटरी सेंटर करता है. कैसे करता है? हाउ? सो जो इंस्पिरेशन की प्रोसेस है जिसमें हम इनहेल करते हैं और ब्रीदिंग मैकेनिज्म अपने ऑलरेडी स्टडी किया है हमने. सो इन द ब्रीदिंग मैकेनिज्म जब इंस्पिरेशन हम करते हैं, सो ड्यूरिंग दैट इंस्पिरेशन तो इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और ये जो डायफ्रैगम है, डायफ्रैगम पर एक मसल है कॉल्ड एज अ फ्रेनिक मसल. सो डायफ्रैगम के ये मसल्स, या फिर हम बोल सकते हैं कि डायफ्रैगम जब कॉन्ट्रैक्ट होता है और ये इंटरकोस्टल मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सो एट दैट टाइम दिस रिब केज मूव्स अप एंड दी आउटवर्ड. ओके, और इसलिए वहां पे क्या हो जाता है, तो वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है, और अंदर जो भी एयर है उस पर से प्रेशर कम हो जाता है, इसलिए आउटसाइड से एयर क्या हो जाती है, इनसाइड रश हो जाती है, इनसाइड आ जाती है. ओके, तो ये जो मसल्स को जो मैसेज आया है, ये सिग्नल्स कहाँ से आते हैं? इस इंस्पायरेटरी सेंटर से आते हैं. ये इंस्पायरेटरी सेंटर जो है मेडुला में, इट सेंड्स signals or impulses to this intercostal muscles and the phrenic muscles of diaphragm. किसके थ्रू आता है ये मैसेज? यहाँ पे दो नर्व्स दिखाए हैं. वन इज कॉल्ड एज इंटरकोस्टल नर्व, और दूसरी जो है यहाँ पे फ्रेनिक नर्व. कहाँ से आए हैं? ये इंस्पायरेटरी सेंटर से आए हैं, मेडुला के इंस्पायरेटरी सेंटर से ये इम्पल्स लेके आए हैं फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दिस इंटरकोस्टल मसल एंड द फ्रेनिक मसल्स, और ये मसल्स फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और इंस्पिरेशन हो जाता है. ओके, इन दिस वे.
So second is the inspiratory and the expiratory center. Okay, now in this inspiratory and expiratory center, this center is made up of a ventral group of neurons. जो न्यूरॉन के वेंट्रल साइड के जो न्यूरॉन्स है, वो वेंट्रल साइड के न्यूरॉन से क्या बनता है, इंस्पायरेटरी एंड एक्सपायरेटरी सेंटर. अब ये जो सेंटर है, इट इज नॉर्मली डॉर्मेंट कंडीशन में, यानी इनएक्टिव कंडीशन में रहता है. जब ये इंस्पायरेटरी सेंटर एक्टिव होता है, एट दैट टाइम नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम पे ये इनएक्टिव रहता है. ये एक्टिव कब होता है, ड्यूरिंग फोर्सफुल रेस्पिरेशन. सो फोर्सफुल इंस्पिरेशन के टाइम, रेस्पिरेशन के टाइम पे, और या एक्सरसाइज है तो एक्सरसाइज के टाइम पे भी ये जो सेंटर है ये क्या होता है, एक्टिव होता है. और ये क्या करवाता है, इट कंट्रोल्स द पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सपायरेटरी मसल्स. तो एक्सपायरेटरी मसल्स जो है उसका वो पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, जैसे कि इंटरकोस्टल मसल्स है और एब्डोमिनल मसल्स है. दीज एक्सपायरेटरी मसल्स का वो क्या करता है, पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन करवाता है. ओके, ये सेंटर. जो थर्ड वाला सेंटर है नर्वस रेगुलेशन का, दैट इज द न्यूमोटॉक्सिक न्यूमोटैक्सिक सेंटर. तो ये इसका लोकेशन कहाँ पर है, दिस इज लोकेटेड इन पॉन्स वरोली. सो यहाँ पे ये जो मेडुला के ऊपर वाला रीजन है पॉन्स वरोली, और पॉन्स या फिर पॉन्स भी बोलते हैं उसको. सो पॉन्स वरोली में ये सेंटर है न्यूमोटैक्सिक सेंटर. ये भी इंस्पिरेशन को रेगुलेट करवाता है इन सर्टन कंडीशंस. कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस के टाइम पे ये काम करता है. और तो और ये और भी कुछ ये सेंटर कुछ और भी काम करता है, दैट इज द स्लो वेव स्लीप. दैट इज द डीपेस्ट जो स्लीप होती है, वो स्लीप के टाइम आई बॉल की मूवमेंट एंड रैपिड आई मूवमेंट ड्यूरिंग ड्रीमिंग. तो ये स्लीप के फेजेस है एक्चुअली. सो द स्लो वेव स्लीप इज द डीपेस्ट स्लीप एंड द रैपिड आई मूवमेंट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द ड्रीमिंग कंडीशन. तो यस, नेक्स्ट इज द न्यूमोस्टिक सेंटर, जो कि अभी मेडुला रीजन में होता है. और वो क्या करवाता है, इट एक्साइट्स द इंस्पायरेटरी सेंटर. वो क्या करता है, ये इंस्पायरेटरी सेंटर. और एक सेंटर है मेडुला में कॉल्ड एज न्यूमोस्टिक सेंटर, जो कि क्या करता है, इंस्पायरेटरी सेंटर को सिग्नल्स भेजता है. एंड देन इंस्पिरेटरी सेंटर जो है वो स्टिम्युलेट होके वो क्या करता है, मसल्स को, यानी इंटरकोस्टल मसल्स और फ्रेनिक मसल्स को क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करवाता है. ओके, और उसके एक एंटागोनिस्टिक काम करने वाला और एक सेंटर यहाँ पे है, लेकिन वो पॉन्स में है, कॉल्ड एज अ न्यूमोटैक्सिक सेंटर. सो ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है, इट मेंटेन्स द रिदम ऑफ रेस्पिरेशन. अगर रेस्पिरेशन का रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो उसको बैलेंस या फिर मेंटेन करने का काम ये करता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर. तो ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिकली काम करते हैं. ओके, सो और तो और ये one of the important thing about this pneumotaxic center is that it is active during panting. So what is this panting? So panting means कि अगर हम लोग बहुत जोर से भाग रहे हैं या फिर कुछ बहुत ज्यादा हेवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो एट दैट टाइम क्या होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो जाती है. क्या हो जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग. देखो हम जोर जोर से सांस लेते हैं लेकिन वो डीप नहीं होती, वो क्या होती है, शॉर्ट ब्रीदिंग होती है. तो वहां पे क्या हो जाता है, ब्रीदिंग का रेट तो बढ़ जाता है, रेस्पिरेटरी रेट तो इंक्रीज हो जाता है, बट वहां पे वॉल्यूम जो है एयर का जो इनटेक करते हैं हम लोग, इनहेल करते हैं, वो कम होता है. ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज अ पैंटिंग. सो ये जो कंडीशन है, ड्यूरिंग दैट पैंटिंग कंडीशन, ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है वो वहां पे ब्रीदिंग मैकेनिज्म को रेगुलेट करने का काम करता है. और तो और क्या होता है, the this causes the evaporation of respiratory membrane. रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का evaporation भी हो जाता है for the cooling effect. इससे cooling effect आने के लिए. ओके, सो ये हो गया three respiratory centers which involved in the nervous control or nervous regulation of respiration. Okay, yes. सो जो भी फर्स्ट टाइप हमने देखा इंस्पायरेटरी सेंटर, कि जो नॉर्मल हमारा ब्रीदिंग करवाता है. तो वो नॉर्मल ब्रीदिंग कैसे होता है, सो एक बार उसको वापस से देख लेते हैं कि नॉर्मल जो इनवॉलंटरी ब्रीदिंग होता है हमारा, उसका रेगुलेशन मैकेनिज्म क्या होता है. ओके,
सो यहाँ पे ब्रेन, वापस से ये डायग्राम देख सकते आप, देख रहे हैं आप, तो ये ब्रेन है, यहाँ पे ये पॉन्स है, यहाँ पे मेडुला है, एंड मेडुला में क्या है, इंस्पायरेटरी सेंटर है। ओके, सो ये एक एक जो रेस्पिरेटरी साइकिल है, इट टेक्स 5 सेकेंड्स, तो उसमें से 2 सेकेंड्स जो है वो इंस्पिरेशन के, 5 सेकेंड्स जो है वो क्या है, एक्सपायरेशन के। तो होता क्या है, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन ये जो सेंटर है, इंस्पिरेटरी सेंटर, इट सेंड्स द इम्पल्सेस, ये क्या करता है, इम्पल्सेस सेंड करता है टुवर्ड्स दिस इंटरकोस्टल मसल्स एंड टुवर्ड्स दिस फ्रेनिक मसल्स ऑफ डायफ्रागम फॉर द कॉन्ट्रैक्शन। इन दोनों को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या करता है, ये जो इंस्पिरेटरी सेंटर वो क्या करता है, इम्पल्स भेजता है, सिग्नल्स भेजता है। और किसके थ्रू भेजता है, यहाँ पे नर्व्स है, वहां से आई ये जो नर्व्स है, तो ये नर्व्स क्या करती है, कौन कौन सी नर्व्स है, इंटरकोस्टल नर्व्स है, और दूसरी कौन सी है, फ्रेनिक नर्व्स। इंटरकोस्टल नर्व्स इनरवेट होती है इंटरकोस्टल मसल्स में, और ये फ्रेनिक नर्व्स इनरवेट होती है डायफ्रागम के मसल्स में, यानी फ्रेनिक मसल्स में। तो ये जो इंस्पिरेटरी सेंटर से इम्पल्स आने के बाद ये जो इंटरकोस्टल मसल्स और जो डायफ्रागम है, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ओके, ये दोनों क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अब कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, ये जो थोरेसिक केज है, इट मूव्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड, ये थोड़ा ऊपर चला जाता है और आउटवर्ड चला जाता है। और क्या होता है, ये जो डायफ्रागम है, डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से ये दिस डायफ्रागम मूव्स डाउनवर्ड, ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, डाउनवर्ड हो जाता है। इसका रिजल्ट क्या होता है, इनसाइड तो थोरेसिक कैविटी स्पेस बढ़ जाता है, यानी वॉल्यूम बढ़ जाता है। ओके, वॉल्यूम बढ़ने की वजह से वहां पे जो भी एयर थी उस पर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ओके, सो प्रेशर कम होने की वजह से जो बाहर की जो एयर थी जिस पर ज्यादा प्रेशर था, दैट एयर रशेस इनसाइड, वो एयर क्या हो जाती है, अंदर आ जाती है। ओके, तो ये यहाँ पे क्या हो जाता है, इंस्पिरेशन हो जाता है। अभी इंस्पिरेशन हो जाता है तो एयर अंदर आ गई, एयर अंदर आ गई तो क्या हो गया, लंग्स इनफ्लैट हो गए, यानी फूल गए, लंग क्या हो गए, इनफ्लैट हो गए, फूल गए। तो जब ये लंग्स क्या हो जाते हैं, इनफ्लैट हो जाते हैं, सो ये इनफ्लैट लंग्स में क्या होता है, फिर जब वो अपने क्रिटिकल पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, जब वो अपनी स्वेलिंग होने की क्रिटिकल पॉइंट पे ज्यादा से ज्यादा जब वो इनफ्लैट हो जाते हैं, फूल जाते हैं, तो उनमें एक स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं लंग्स में। तो वो स्ट्रेच रिसेप्टर्स क्या करते हैं, वहां पे वो स्टिम्युलेट हो जाते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर्स क्या हो जाते हैं, स्टिम्युलेट हो जाते हैं, एंड दे सेंड्स इम्पल्सेस टुवर्ड्स अ एक्सपायरेटरी सेंटर। वो क्या करते हैं, एक्सपायरेटरी सेंटर की तरफ सिग्नल्स भेजते हैं, किसके थ्रू, वैगस नर्व के थ्रू। ओके, वैगस नर्व के थ्रू क्या हो जाते हैं, ये लंग्स से एक्सपायरेटरी सेंटर की तरफ मैसेज या सिग्नल भेजे जाते हैं। अब ये एक्सपायरेटरी सेंटर क्या करता है, इट सेंड्स अ इनहिबिटरी इम्पल्स। ये एक्सपायरेटरी सेंटर क्या करता है, इट सेंड्स अ इनहिबिटरी इम्पल्स टू एक इंस्पायरेटरी सेंटर। वो क्या करता है, इन इंस्पायरेटरी सेंटर की तरफ इनहिबिट यानी स्टॉप करने वाले, इंस्पायरेटरी सेंटर के सिग्नल को स्टॉप करने वाले सिग्नल्स वो भेजता है, और इंस्पायरेटरी सेंटर क्या करता है, फिर ये इनको ये सिग्नल्स इम्पल्स भेजना बंद कर देता है, वो इनहिबिट हो जाता है, तो ये इम्पल्स आना बंद हो जाते हैं। अब ये इम्पल्स आना जब बंद हो जाते हैं इन्हें, तो इसकी वजह से ये जो मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे वो अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे, यानी वो रिलैक्स हो जाएंगे। वो क्या हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, दोनों भी फ्रेनिक मसल्स और इंटरकोस्टल मसल्स। जब ये रिलैक्स हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, ये थोरेसिक केज वापस से थोड़ा सा नीचे आ जाता है, डाउनवर्ड हो जाता है और इनवर्ड हो जाता है। और तो और ये जो डायफ्रागम था, ये डायफ्रागम क्या हो जाता है, इट मूव्स अपवर्ड, वो ऊपर चला जाता है। और इसकी वजह से क्या हो जाता है, इन सब की वजह से यहाँ पे थोरेसिक जो कैविटी है वहां पे वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है। वॉल्यूम कम हो जाता है तो वहां पे एयर प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अब एयर प्रेशर इंक्रीज हो गया, इसलिए मैकेनिकल प्रोसेस में बाहर की तरफ जो एयर प्रेशर कम था, इसलिए अंदर की तरफ प्रेशर ज्यादा हो गया, तो वो एयर रशेस आउट। ओके, एयर क्या हो जाती है, अंदर से बाहर आ जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सपायरेशन कहते हैं। अब ड्यूरिंग एक्सपायरेशन क्या हो जाएगा, ये लंग्स डिफ्लैट हो जाएंगे, लंग्स क्या हो जाएंगे, डिफ्लैट हो जाएंगे, उनका साइज कम हो जाएगा, उनमें से एयर जो है वो अभी निकल गई। तो अभी एयर निकल गई है तो नो मोर स्ट्रेच रिसेप्टर्स। तो जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स क्या कर रहे थे, यहाँ पे वो वैगस नर्व थ्रू
एक्सपायरेटरी सेंटर को मैसेज दे रहे थे कि अभी इंस्पायरेटरी सेंटर को इनको नहीं भेजना है, ओके। तो ये से यहाँ से वैगस नर्व से मैसेज जाना या सिग्नल जाना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है टुवर्ड्स द एक्सपायरेटरी सेंटर। अब एक्सपायरेटरी सेंटर को यहाँ पे सिग्नल नहीं मिल रहा है, ओके। तो वो क्या करता है, जो इंस्पायरेटरी सेंटर को भेज रहा था वो सेंटर इनहिबिटिंग इम्पल्स, तो वो इनहिबिटिंग इम्पल्स भेजना बंद कर देता है, ओके। और अगर इंस्पायरेटरी सेंटर को इनहिबिटरी इम्पल्स मिलना बंद हो जाता है तो वो वापस से ये वाले जो इम्पल्स है कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए वो वाले इम्पल्स भेजना शुरू कर देता है, ओके। सो थ्रू दिस इंटरकोस्टल नर्व एंड द फ्रेमिक नर्व, और इस तरह से ये इम्पल्स वापस शुरू हो जाते हैं। तो ये इंस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो वापस स्टार्ट हो जाता है, और इस तरह से ये साइक्लिक जो प्रोसेस है वो होता रहता है, ओके। सो ऑल दीज इवेंट्स आर कॉल्ड एज ए हेरिंग ब्रूअर्स रिफ्लक्स इसको कहते हैं। एंड ये जो इवेंट्स है और ये जो रिदम कंट्रोल, it controls the depth and the rhythm of respiration, and it also prevents the lungs from inflating to the point of bursting, okay। so lungs both maximum अगर inflat होके burst उसको होने से prevent करता है ये जो mechanism है, okay। so this is the nervous regulation of a breathing process। उसके बाद हमने कहा कि ब्रीदिंग जो है वो इनवॉलंटरी है, लेकिन समटाइम्स इन सर्टेन कंडीशंस दिस रेस्पिरेशन इज वॉलंटरी आल्सो, ओके। हमारी इच्छा से या विल से भी ये रेगुलेशन हम कर सकते हैं फॉर शॉर्ट पीरियड। तो क्यों कर सकते हैं, द रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैज कनेक्शन विद सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सो ब्रेन का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको कहते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सो ये रेस्पिरेटरी सेंटर उससे कनेक्टेड होते हैं, और ये कनेक्टेड होने की वजह से कुछ ब्रीदिंग के कुछ पैटर्न वॉलंटरीली हम कुछ ब्रीदिंग जो है वो कर सकते हैं। पर्टिकुलरली जैसे योगा है या फिर योगा के टाइम पे हम लोग पर्पजली कुछ डीप ब्रीदिंग या शॉर्ट ब्रीदिंग जो है वो कर सकते हैं। और तो और अगर वॉलंटरी कंट्रोल पर्टिकुलरली फॉर द प्रोटेक्टिव रीजन, ओके, हमारे प्रोटेक्शन के लिए है, बिकॉज इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ वाटर एंड इरिटेटिंग गैसेस फ्रॉम एंटरिंग आवर लंग्स। तो कुछ इरिटेटिंग या पॉइजनस गैसेस है या फिर अगर वाटर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर हो रहा है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम वॉलंटरली कुछ देर के लिए अपनी सांस रोक सकते हैं, ओके। सो दैट इज कॉल्ड एज अ वॉलंटरी। अपनी इच्छा से हम सांस को रेस्पिरेशन मैकेनिज्म को रोक सकते हैं, बट सिर्फ थोड़ी सी पीरियड के लिए, नॉट फॉर द लार्ज ड्यूरेशन। ज्यादा टाइम के लिए हम उसको नहीं रोक सकते क्योंकि उस बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का बिल्डअप होता जाता है, ओके। तो ये हो गया regulation of respiration and the voluntary regulation. And the last point, that is the chemical regulation of the breathing, okay। so इसको देखते हैं हम। so chemical जो regulation है, it means chemosensitive bodies are present in our body, yeah, that means they are sensitive, there are certain bodies which are sensitive to some chemicals। तो chemicals कौन से, यहाँ पे एक तो CO2 and O2, okay। तो in and particularly these chemosensitive bodies are more sensitive to CO2, okay, and very less sensitive to the O2। वो CO2 के लिए ज्यादा sensitive है than the O2। तो कौन कौन से है ये chemosensitive body, एक तो है carotid body और second है aortic body, okay। so carotid body located at the base of carotid sinus, जो heart में carotid sinus है उसके base में एक carotid body है, और aortic body that is located at the base of aorta, जो डॉर्सल अबोटा है उसके बेस में ये अवर्टिक बॉडी है। तो कैसे होता है केमिकल रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, तो ड्यूरिंग सर्टन कंडीशंस बॉडी में जब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ओके। सो व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इंक्रीजेस इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, नॉर्मली जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता ही है, बट अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो वहां पे क्या हो जाएगा, दिस CO2 combines with the H2O, ओके। तो ब्लड में ये CO2 क्या हो जाएगा, वाटर के साथ कंबाइन हो जाएगा एंड दे विल फॉर्म द कार्बोनिक एसिड। क्या फॉर्म करता है वो, कार्बोनिक एसिड। सो ये कार्बोनिक एसिड है,
इट इज अनस्टेबल, ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है, एंड इट readily converts into HCO3 minus ions and H plus ions. Okay, उसमें से जो H प्लस आयंस जब इंक्रीज हो जाते हैं, सो दैट H प्लस आयंस इंक्रीजेस द एसिडिटी, यानी पीएच को वो कम करते हैं और एसिडिक ब्लड को एसिडिक बनाते हैं. ओके, पीएच ऑफ द ब्लड बिकम्स एसिडिक हो जाता है. अब ये एसिडिक जो पीएच है, that acidic pH is detected by some centers present in our brain. हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल रिदम सेंटर्स है, वो डिटेक्ट करते हैं या वो स्टिम्युलेट हो जाते हैं, and when they get stimulated, they increase the rate of रेस्पिरेशन. और क्या हो जाता है इसका रिजल्ट, रेस्पिरेशन का रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है. और रेस्पिरेशन का रेट जब इंक्रीज हो जाता है तो क्या हो जाता है, जो भी एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हुआ था, वो एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को हम बॉडी से क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, एक्सेल कर देते हैं, और इस ऑक्सीजन को हम ऑक्सीजन का लेवल वापस से नॉर्मल वहां पे हो जाता है. एंड दिस कंडीशन normalize the O2 and the CO2 level. Okay, so this is the chemical regulation of breathing. Okay, so ये था regulation of the breathing by nervous and the chemical way. Okay, so next video में हम लोग respiratory system से related कुछ diseases है वो study करेंगे. Till then, bye and thank you.